Welcome to the class of physics. As in the previous lecture, we have started the new chapter, that is refraction of light, and we have already discussed what is the refraction of light. Okay, based on the same, our today's topic is refraction of light through a glass slab. It means if we have a glass slab, how the light refracts through this. Okay, so for this we are taking a glass slab. This is parallel sided glass slab because front side of glass है, ये ग्लास की बनी हुई है, तो इसकी जो साइड्स है आमने सामने की ये बराबर है. दिस इज ए बी सी एंड डी. सो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए डी और सी बी भी आपस में पैरेलल है. सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब. तो ग्लास की बनी हुई है, इसके ऊपर नीचे एयर है दोनों तरफ. तो लाइट का हमें रिफ्लेक्शन शो करना है इससे. सो रिफ्लेक्शन के लिए वी हैव एन इंसिडेंट लाइट, वी हैव पी क्यू एज इंसिडेंट light. So what we have, PQ incident, I'm writing on this side, PQ is incident ray of light. This is incident ray of light that falls on interface AB. What type of reflection will occur here? It means from rarer to denser or from denser to rarer. As outer side is air and this is of glass, again this side contains air. So it means air to glass, air having a speed of 3 into 10 to 8 meter per second of light. Okay, and again glass having a speed of 2 into 10 to power 8 meter per second of light in glass. So it means air is having more speed than glass. So air is a denser medium or rarer medium. Air will be a rarer medium. Air will be a rarer medium, so glass will be a denser medium. It means light is going from rarer to denser medium. Light is going from rarer to denser medium. So when light goes from rarer to denser medium, what will happen? Light bends towards the normal. Previous lecture में हम बता चुके हैं, when light goes from rarer medium to denser, it will bend towards the normal. So it will bend towards the normal. So this is the ray QS. I am giving name to this. QS is QR. QR is refracted ray of light. Refracted ray of light. Okay. So now angles. What are the angles? This is angle of incidence. This is angle of reflection. Okay. So this was the reflection on the face AB. Now light ray passes from the AB as refracted ray and strikes on the interface DC. DC इंटरफेस के ऊपर भी ये स्ट्राइक करेगी. अब DC इंटरफेस किन दो मीडियम्स को अलग कर रहा है, ग्लास और एयर को. बट अब उल्टा हो गया, अगर हम DC इंटरफेस की बात करें तो हमारे लिए QR एक इंसिडेंट रे होगी. इस फेस की बात कर रहे हैं, जिस इंटरफेस की बात करो उससे ऊपर वाली इंसिडेंट, नीचे वाली रिफ्लेक्टेड. तो इस फेस की अगर हम बात करें, इस ऊपर वाली इंसिडेंट और नीचे वाली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे. तो इस डीसी फेस के लिए क्यूआर इंसिडेंट है, तो हम नॉर्मल इसका भी ड्रॉ होगा. कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर. इट मीन्स डेंसर टू रेयर. ग्लास की स्पीड कम होती है और एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है. इट मीन्स गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. इट मीन्स गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. अगर डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ये ऐसे जाएगी. दिस इज आर एस. This RS is now called emergent ray. This RS is called emergent ray क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद बनी है, तो this is called emergent ray. And also this angle, emergent ray और normal के बीच का जो angle है, that is E. E is called angle of emergence. E is called angle of emergence. Okay. E is called angle of emergence. So this is emergent ray.
and practically it has been seen that I is equal to E मिलता है अपने को. It means angle of incidence और angle of emergence equal होते हैं पैरेलल स्लाइडेड ग्लास लैब में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल मिलते हैं आपको इसमें, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है. अगर हम इंसिडेंट रे को एज इट इज आगे बढ़ा के देख लें तो वो इमर्जेंट रे के क्या मिलेगी अपने को, पैरेलल. इट मींस इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है अगर हम उसको सीधा एक्सटेंड कर दें, दैट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इट मींस पैरेलल स्लाइडेड ग्लास लैब में इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों दूसरे के पैरेलल होते हैं. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस हैपेंस, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है और बोथ साइड्स भी मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ आपस में पैरेलल है. व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज जिन फेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ए बी और डी सी पे, दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, वो भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल. क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो रेज हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगी. सो दिस वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. इसमें आई इज इक्वल टू ई मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे. बट देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इन दोनों में एक डिस्टेंस जरूर है, गैप. अगर हम देखें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इतना गैप इन दोनों के बीच में है. This gap is called lateral displacement. This gap is called lateral displacement. Perpendicular distance between emergent ray and incident. Parallel तो है लेकिन कुछ गैप तो है दोनों के बीच में. That is called lateral displacement. That is called lateral displacement. और lateral displacement कब ज़्यादा होगी कब कम होगी ये डिपेंड करेगा जो आप स्लैब ले रहे हो उसकी थिकनेस पे. ग्लास स्लैब की थिकनेस मान लो ये डी है, तो इसकी थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी. थिकनेस ज़्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी. अगर थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम ही होगी. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. सो another, there is a special case if any ray of light was perpendicular to through the glass slab. This is glass, air, glass, air upper glass का बना हुआ स्लैब है और एयर इसके नीचे. तो अगर perpendicularly स्ट्राइक कर रही हो then what is the angle of incidence? Angle of incidence is 0 degree. क्योंकि नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे. अगर इंसिडेंट रे इसी के ऊपर आ जाए तो एंगल खत्म ही हो जाएगा. तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, द रे ऑफ लाइट विल passes straight through the glass slab, then angle of refraction will also be 0, angle of emergence will also be 0. as angle of incidence to angle of emergence तो हमेशा इक्वल ही होते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 0 होगा. देयर आर a lot of examples in our daily life which are based on the refraction of light. it means refraction से अपने को तो कुछ बैंड दिखाई देगा. आप क्या करना है, कांच का गिलास ले लेना, पानी उसमें डाल लो, एक पेंसिल उसमें रख लो. तो पेंसिल जब आप रखोगे पानी जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पेंसिल आपको थोड़ी नीचे बेंड होती दिखाई देगी. क्यों, क्योंकि अब पेंसिल पानी में चलेगी तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होगा तो लाइट स्ट्रेट नहीं आती. लाइट सिर्फ एक मीडियम हो तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम हो तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती है, लाइट बेंड होके आती है. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि जब एक कांच का गिलास में पानी भर लो, उसमें आप पेंसिल रख लोगे, पेन रख लो, तो आपको पेन थोड़ा सा ना टूटा हुआ या बेंड दिखाई देगा. दिस हैपन्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक कॉइन ले लो, कॉइन पानी में रख लो किसी बाउल में, और आप उसको साइड से थोड़ा सा देखो, कांच का बाउल ले लो, कांच का गिलास ले लो, तो आपको कॉइन तरह उठा हुआ दिखाई देगा. स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की जितनी गहराई होती है उतनी नहीं दिखाई देती, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है. क्यों, क्योंकि आपकी आंखें एयर में है और जो बॉटम है जो स्विमिंग पूल का वो पानी में से रे आ रही है उसकी, तो वो बेंड होकर आ रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, पानी से एयर में आ रही है. तो इट मीन्स आपको बेंड होने के बाद एक्चुअल डेप्थ या एक्चुअल जो हाइट है वो नहीं दिखाई देती, वो कुछ चेंज हो जाएगी.
So these are the some examples based on refraction of light through a glass slab. I will share another video which show practically you do the refraction of light through a glass slab. Okay, so you have to watch both the videos, okay, and try to understand the concept. So this was all about today's topic, that is the reflection of light through a glass slab. Thanks and have a nice day.